Hello, young friends. In this topic, here we are going to do law of conservation of linear momentum. So now first what we have to do is a statement. Now what is a statement? When two or more bodies, yes, when two or more bodies, जब दो या दो से ज़्यादा bodies interact करती हैं एक दूसरे के साथ, when they interact with one another, the vector sum, मतलब हमें उनका डायरेक्शन भी कंसिडर करना है. ओके, वेक्टर में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज हम मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी लेते हैं. तो हमें दोनों का वेक्टर सम लेना है ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा. मोमेंटा क्या रहता है, प्लूरल वर्ड है मोमेंटम का. मोमेंटम हमने पढ़ा है पहले, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. तो उस बॉडी का, दो बॉडीज का जो मोमेंटम रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन कंडीशन क्या है, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उन पर बाहर से एक्ट नहीं होना चाहिए. अगर वो एक्ट होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा. सो व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरैक्ट विद वन अनदर, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा remains constant. Okay, and condition is if no external unbalanced force is acting on the system. System means what system we take here, we consider both the bodies. Okay, whatever interaction is taking place between them, तो वो पूरा लेकर हम दोनों बॉडीज को कंसिडर करते हैं, तो उसे हम एक सिस्टम बोलते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम कंसिडर करते हैं, अब इसका प्रूफ करेंगे. प्रूफ के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, दो बॉडीज. कंसिडर टू बॉडीज, एक है बॉडी ए, बॉडी बी. यू कैन मेक सच टू कॉलम सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट ऑल टू राइट डाउन. नाउ बॉडी ए का मास हमने ले लिया ma. Body A is moving initially with velocity UA. Okay, body A initial velocity UA से चल रही है. Okay, body B का मास हमने लिया mb और body B initial velocity चल रही है ub. Is it clear? Fine. Now, what all we consider? Okay, अब अगर UA जो A है, बॉडी A, उसकी स्पीड B की स्पीड से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जाएगी और इसको टक्कर मारेगी. ए बॉडी B को टक्कर मार देगी, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कोलिजन. दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा. यस, क्योंकि ए बॉडी B को टक्कर मारेगी, तो क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है. और सपोज कि कोलिजन t सेकेंड्स के लिए, collision last for t seconds. See what all we are saying that you have to write down as explanation. So how you will write down the explanation? Consider body A with mass ma, it is moving with initial velocity ua. Consider body B moving with mass mb, whose mass is mb, moving with initial velocity ub. Now we consider that the velocity of body A is greater than velocity of body B. So what will happen? Collision will take place. Is it clear? Now, what happens? Suppose the collision takes place for t seconds. So we draw one diagram in which the body B goes and collides with body B. So body A goes and collides with body B. So when it will collide, what will happen? B will exert force on A. Correct? So we will write down here FBA. FBA means force acting on B due to A. A के वजह से B के ऊपर जो फोर्स लग रहा है. Yes, BA. When we take BA, what do you take? Force exerted by B on A. Yes, B इधर A पर फोर्स लगा रहा है ना, तो B force acting by B on A. Is it clear? Okay, similarly at the same time दोनों में टक्कर हो रही है, दोनों में कोलिजन हो रहा है, तो B पर क्या होगा, फोर्स एक्टिंग बाय A on B. A B पर टक्कर मारेगा, तो A B पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स एक्टिंग बाय A on B. जब हम B ले रहे हैं तो on B पर लेंगे, बाय A on B. Is it clear? And what will happen according to Newton's third law? Equal and opposite force लगेगा. A B के ऊपर लगाएगा, B A के ऊपर लगाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, equal and opposite force acting on A and B. Are you getting? Okay. Now we consider दोनों में टक्कर हो चुकी है,
टक्कर होने के बाद बॉडी ए और बॉडी बी अपने अपने कुछ डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो जो बाद में की वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी वी ए, इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी वी बी। इज इट क्लियर? We will just revise what we have taken. We have considered two bodies A and B. A का mass ma, initial it is moving with initial velocity ua. Consider body B moving with whose mass is mb, moving with initial velocity ub. Correct? Now we consider the velocity of A is greater than B. Initial velocity A की ज़्यादा है, A की ज़्यादा है तभी तो वो जाके B को टक्कर मारेगा। करेक्ट? टक्कर मारेगा मतलब क्या हो गया? कोलिजन हो गया। ओके, एंड सपोज द कोलिजन लास्ट फॉर t सेकेंड्स, t सेकेंड्स तक कोलिजन रुका। ओके, तो क्या होगा? ए फोर्स लगाएगा बी के ऊपर। यस, तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। तो बी के ऊपर ए बी फोर्स लिया हमने, उसी तरह बी ए पर लगाएगा तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। टक्कर होने के बाद क्या होगा? फिर वो अलग हो जाएंगे और एक अपनी अपनी स्पीड से चलने लगेंगे। तो देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ए की फाइनल वेलोसिटी वी ए, बी की फाइनल वेलोसिटी वी बी। इज इट क्लियर? फाइन। अब हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम। अब हम एक एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम लेंगे। अब हम पहले ले रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ए का चेंज इन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। यस, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम ले सकते हैं। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन माइनस momentum of A before collision okay, momentum of A before collision। तो momentum of A after collision क्या रहेगा? mass into final velocity। momentum of A before collision क्या रहेगा? mass into initial velocity। is this clear? okay, now we take rate of change of momentum। रेट जब आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? नीचे टाइम डालना पड़ता है, हमको टाइम से डिवाइड करना होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए, ये है मोमेंटम, यस, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। क्लियर? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यस, सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ व्हाट वी गेट? एफ by B on A is given by MAVA minus MAUA divided by time। yes, this is our by Newton's second law। clear? अब ये हमने निकाला बॉडी A का। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर बॉडी B। हमें मिल जाएगा force acting by A on B is equal to MBVB minus MAUA divided by time। clear? okay, now ये हो गया बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें बॉडी बी का मिल गया, ये मिल गया बॉडी ए का। तो हमने क्या क्या किया? पहले चेंज इन मोमेंटम निकाला। चेंज इन मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम और बिफोर कोलिजन का मोमेंटम को माइनस किया। फिर हमने डाला रेट जब हम डालते हैं तो नीचे टाइम डालेंगे। फिर हमने लगाया न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। सिमिलरली हमने निकाल लिया बॉडी बी का। क्लियर?
अब हमारा पॉइंट आता है फोर्स एक्टिंग बाय ए ऑन बी इज ऑपोजिट, इसलिए हम माइनस साइन डालेंगे. कैन यू सी दिस फिगर? सी, कोलिजन के टाइम में क्या हो रहा है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर, सो दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. करेक्ट? बी ए पर लगा रहा है, ए बी पर लगा रहा है, दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हम डालते हैं माइनस फोर्स एक्टिंग बाय बी ऑन ए. इज इट क्लियर? तो हमारा एफ ए बी तो हमें पता है, अभी हमने ऊपर लिखा था. एफ ए बी क्या है हमारा? यस, एफ ए बी है हमारा ये एम बी वी बी minus MA, now here also B will come. MB VB minus MB UB. So MB UB upon time is equal to minus of, we will take minus of MAVA minus MAUA divided by time. ओके, नाउ टाइम दोनों साइड कैंसिल. इधर क्या मिल रहा है हमें? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस ओपन करेंगे एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए. क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी इनिशियल मोमेंटम है उसे एक तरफ और फाइनल मोमेंटम एक तरफ. तो ये जो दिख रहा है ये है हमारा फाइनल ऑफ बॉडी ए. तो एम बी वी बी इसे एक ये साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू, इधर हमारा बचा है एम ए यू ए और ये जो यू बी है इसे हम ले जाएंगे उस तरफ. तो ये बन जाएगा, माइनस है ऑलरेडी, वो प्लस हो जाएगा एम बी यू बी. क्लियर? तो इससे हमें मिल गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये देखो, ये है हमारा, दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओके, और ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन. फाइन, momentum before collision. So momentum after collision is equal to momentum before collision. Okay, so and what is the condition? That no external unbalanced force should act on it. So in this way you have to prove law of conservation of momentum. Okay, fine, thank you. If you like this video, kindly subscribe, and in the next video I will upload numericals related to this. Bye bye.